हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बीकॉम का जो एक सब्जेक्ट है उसका चैप्टर कराने जा रहा हूँ, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 128 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एवरी कंपनी रिक्वायर्स टू प्रिपेयर एंड कीप इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस books of accounts and other relevant books and papers and financial statements for every financial year which give a true and fair view of the state of affairs of the company, including both of its branch office or offices if any, and explain the transaction affected both at the registered office and its branches, and such books will be kept on accrual basis and according to the double entry system of the accounting। तो इसमें यही कहा है कि 128 सेक्शन कंपनीज एक्ट के अंदर किसी भी कंपनी को ये ज़रूरी है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बाकी जो स्टैचुरी बुक्स है वो बनाना अपने हेड ऑफिस पे और या अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे जो कि कंपनी की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है और ट्रू एंड फेयर पिक्चर दे रही हों, एक्रूअल बेसिस पे बनानी है और डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करना है। Compliance with accounting standard, yes, according to the section 129 of the Companies Act 2013, the financial statement give a fair and true and fair view of the statement of affairs of the company। ठीक है जी। Companies complying with the accounting standard and shall be in the form or forms as they may be provided for different class or classes of the companies in schedule 3। ठीक है जी। और उसके बाद it further provided that items contained in such financial statements shall be accordance with the accounting standards। ठीक है जी। उसके बाद as per section 133 of the Companies Act 2013, accounting standards recommended by the ICAI, Institute of Chartered Accountants of India, and prescribed by the central government in consultation with the National Financial Reporting Authority are mandatory and applicable to all companies while preparing statement of profit and loss and balance sheet। 129(5) prescribes that where statement of profit and loss and the balance sheet of a company doesn't comply with the accounting standards, such a company shall disclose in its statement of P&L and balance sheet, वो है A, द डेविएशन फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दूसरा द रीजंस फॉर सच डेविएशंस, और उसके बाद द फाइनेंशियल इफेक्ट इफ एनी अराइजिंग आउट ऑफ सच डेविएशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 240 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू ए कंपनी इंक्लूड्स a balance sheet, a statement of profit and loss, cash flow statement, a statement in change in equity, any explanatory note annexed to or forming part of any document referred to in clause सब क्लॉज 1 to सब क्लॉज 4। इनमें जो भी डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स भी देनी है। प्रोवाइडेड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स with respect to one person company, small company and dormant company may not include कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है जी। इन कंपनीज को बनाने की जरूरत नहीं है कैश फ्लो को, बाकी सबको बनानी होती है। उसके बाद शेड्यूल 3 के अंडर क्या आता है? जर्नल इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट एंड द स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ ए कंपनी एंड एडिशन टू द नोट्स इनकॉर्पोरेटेड अबव द हेडिंग ऑफ द बैलेंस शीट एज अंडर। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या आएंगी? पहला है वेयर कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट इंक्लूडिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज एप्लीकेबल टू द कंपनीज रिक्वायर एनी चेंज इन ट्रीटमेंट शैल बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली। ओके। एंड उसके बाद द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन द प्रॉफिट एंड in part 1 and part 2 of this schedule are in addition to and not in substitution of the disclosure requirement specified in the accounting standards prescribed under the Companies Act 2013। Notes to account shall contain information in addition to that presented in the financial statement and shall provide where required a narrative description, b information about items
that don't qualify for recognition in those statements, और उसके बाद depending upon the turnover of the company, figures appearing in the financial statement may be राउंडेड ऑफ एज फॉलो। राउंडेड ऑफ कैसे होगी, एक तो उसकी टर्नओवर जिसको हम उसकी सेल्स भी बोलते हैं, और राउंडेड ऑफ कैसे कर सकते हैं, लेस देन 100 करोड़ रुपीज अगर उनकी सेल है तो कैसे करेंगे, टू द नियरेस्ट 100,000 लाख मिलियंस और डेसिमल्स देयर ऑफ, और यदि उसकी 100 करोड़ एंड अबव है टू द नियरेस्ट लाख मिलियंस करोड़ डेसिमल्स देयर ऑफ, और यूनिफॉर्मली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सभी में होगा, ये नहीं कि 2 आइटम्स में आप कर दो बाकियों को किसी और तरीके से करो, सभी में यूनिफॉर्मिटी से एक जैसा ही राउंडिंग ऑफ होगा। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि अगला पॉइंट, प्रीसीडिंग ईयर्स इंफॉर्मेशन मस्ट बी reported along with the current year's financial statement. For the purpose of this schedule, the term used herein shall be as per applicable accounting standards. ठीक है जी, तो अभी मैं आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिखाता हूं और P&L का फॉर्मेट भी दिखाता हूं। ये देखिए, ये रहा कंपनीज अकाउंट में बैलेंस शीट का फॉर्मेट स्केड्यूल 3 के हिसाब से। पार्ट 1 स्केड्यूल 3 में पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट आता है। ठीक है जी, तो ये रहा आपका कंपनीज अकाउंट की बैलेंस शीट का फॉर्मेट, या आपके पास कोई भी बुक है जो कंपनीज अकाउंट की +2 की भी बुक है उसमें भी सेम फॉर्मेट है, बीकॉम की भी बुक में यही आपको फॉर्मेट मिलेगा। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये सारा फॉर्मेट आपको अच्छी तरह आता है, सारे कंटेंट्स के लिए आपकी जान पहचान अच्छी खासी है। फ्रॉम +1 ऑनवर्ड्स ये सारी डिटेल्स आप किसी ना किसी रूप में पढ़ चुके हो, आपको पता है इनमें कौन कौन से कंटेंट है, बस इसका फॉर्मेट इस थोड़ा अलग सा होता है। अब मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा P&L का। ओके भाई, ओके रुको एक सेकंड। ये रहा P&L का फॉर्मेट, ये P&L का फॉर्मेट पार्ट 2 ऑफ स्केड्यूल 3। ठीक है जी, वो पार्ट 1 में बैलेंस शीट थी, स्केड्यूल 3 में स्केड्यूल 3 में पार्ट 2 में ये P&L बनाना है। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ये सारी डिटेल आ गई। एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर लेस टैक्स और टैक्स आफ्टर टैक्स का प्रॉफिट ये आ जाएगा। ठीक है, पार्ट 2 ऑफ स्केड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। P&L का फॉर्मेट ऐसे बनता है, 2 साल की इंफॉर्मेशन ये देनी पड़ती है। ठीक है जी, चलिए ये थे इसके फॉर्मेट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। ओके, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस क्या है, जो मेजर इसके अब कंपोनेंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। डिफरेंस क्या है रिजर्व्स एंड प्रोविजन में, और प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस एंड इट इज क्रिएटेड फॉर प्रोबेबल लॉसेज। इट इज अ चार्ज ऑफ प्रॉफिट टू एंड लॉस अकाउंट, इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। It can't be distributed for profit, it can be distributed as dividend. It cannot be invested in securities, it can be invested in securities. It is made because of legal necessity, it is a matter of financial importance. ठीक है, it is shown by way of deduction from the items and shown under the head reserves and surplus. ठीक है जी, ओके, तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं सम स्पेशल फीचर्स। सम स्पेशल फीचर्स क्या हैं, जर्नल प्रिंसिपल्स governing the preparation of the statement of profit and loss of a sole proprietor or partnership firm and those of company are same। सभी का बैलेंस शीट या फाइनेंशियल अकाउंट बनाने का तरीका, P&L बनाने का तरीका सेम है। स्टेटमेंट ऑफ P&L of a company should depict a true and fair view of the profit and loss of the company. Adjustments for prior years should be shown separately unless they are immaterial. Events which occur between the balance sheet date and the date on which financial statements are approved by a board of directors may indicate the need for the adjustments of assets and liability as the balance sheet date or may require disclosure as per accounting standards. Changes in accounting policy, if any, such as change in method of valuation of inventories or change in the method of providing depreciation should be disclosed along with the amount by which profit and loss of the current year is affected. उसके बाद in case of a company trading and profit and loss are not prepared separately, only a statement of profit and loss is prepared, ठीक है, which shows income after tax. अब उसके बाद
डिविजिबल प्रॉफिट्स क्या होते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट्स, so the term divisible profit is very complicated term because all the profits are not divisible profits. Only those profits which are legally available for dividend to the shareholders. Okay, dividend cannot be declared except out of profit. और अब डिविडेंड्स क्या होते हैं? शेयर होल्डर्स गेट रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स गिवन टू देम फ्रॉम टाइम टू टाइम. दस डिविडेंड्स आर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अमंगस्ट द शेयर होल्डर्स. और उसके बाद सोर्सेज ऑफ डिक्लेयरिंग डिविडेंड क्या है? आउट ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट और आउट ऑफ पास्ट रिजर्व्स, इन दोनों में से दे सकते हो. डिविडेंड कैन बी ऑफ टू टाइप्स. इंटरिम डिविडेंड जो 2 टर्म्स के बीच में आता है, ठीक है जी, बिटवीन द ईयर जिसको भी बोल सकते हैं, और फाइनल डिविडेंड जो साल के क्लोज होने पे जाएगा, दिया जाएगा. ठीक है जी, ओके, चलें आगे. चलो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस are those expenses which are incurred on the formation of the company. Such expenses including stamp duty, fee payable on the registration of the company, legal and printing charges for the preparing prospectus, memorandum of association, article of association, statutory fees, books of accounts का खर्चा, ये सारा preliminary expenses में जाता है. और उसके बाद प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस क्या होते हैं? Such expenses are incurred by a company after the stage of incorporation till the time it is in a position to start its operation. These expenses are also charged to P&L, statement of P&L. राइट गाइज, तो ये था सारा इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन. आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए. ओके जी, डन.